Hello, welcome to another session of practice. Let's take another important question. Evaluate 0 to pi x on a square cos square x plus b square sin square x dx. This is an important question and a number of times it has come in exam. So let us see how we go for solution. Let I be 0 to pi x on a square cos square x plus b square sin square x dx. Using property, we can express I as 0 to pi. Instead of x, I'll take pi minus x अपॉन जहां भी x है वहां पर पाई माइनस एक्स रख देंगे. ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx. इसे और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है. तो वी कैन अगेन एंड सेम वे हियर ऑल्सो इट विल बी साइन एक्स dx. इसे हम 1 और 2 लेते हैं. नाउ एडिंग 1 एंड 2, i प्लस i ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, लिमिट वही रहेगी 0 टू पाई. अब x प्लस पाई माइनस एक्स, तो x कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ आया आपका पाई अपॉन डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं, 1 और 2 में डिनोमिनेटर सेम है. तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स है dx. अब ये 0 से पाई की लिमिट है. इसे हम 0 टू पाई बाई 2 कर लें और उसका डबल कर लें. तो वी कैन जस्ट राइट 2i इज इक्वल टू, पाई को मैंने बाहर निकाल लिया और इसको ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2. ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये नोट करें. पाई हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 1 ऑन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर sin square x dx. This is a important step, should be noted. यूजुअली यहाँ पर गलतियाँ होती हैं और फिर क्वेश्चन उलझ के रह जाता है और इसमें टाइम वेस्ट होता है. अब इसको आगे देखिए. नाउ इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो वी हैव i इक्वल्स टू पाई टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ 1 डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स बाहर ले लीजिए. कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया आपने, यहाँ बच गया आपके पास ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स. यहाँ हमने
cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है एक्चुअली. तो दिस विल गिव यू पाई 0 to pi on. Now this one can be expressed as sec square x और डिनोमिनेटर में आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx. ये होता है tan स्क्वायर x. पाई 0 पाई ऑन 2 sec स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर of tan square x dx. Now this is again a standard form and we can solve it by substitution. Here what we will have put b tan x as t. This will imply that b sec square x dx is dt and limits as x approaches 0, t will take 0 and as x will approach pi by 2, t will approach infinity. Ab applying these things to our question, we will see that this becomes, the expression will become now I equals pi times, now limit will change to 0 to infinity of, this is dt by b and this is a square plus t square, which I can write as pi by b 0 to infinity dt a square plus t square, which is a standard integral of pi by b of 1 by a tan inverse t by a, putting the limits 0 to infinity. Next step, take this a out, pi by ab of tan inverse infinity minus tan inverse 0. This is pi on AB, this is pi by 2 and this is 0, which is pi square upon 2AB is our final answer. So this question is important and one can note this. Let us consider another interesting question. This is an application based question, an indirect question. Question says a farmer has a field of shape
बाउंडेड बाय x equals to y square and x equals to 3। एक फार्मर के पास ये फील्ड है which is bounded by this line, this curve and this line. Clearly this is a parabola and this is a straight line. So he has a field of type, this parabola is of symmetric about x-axis, somewhat like this. This is x-axis and this is y-axis, and this curve is your x equals to y square, which is a parabola symmetric about x-axis. This is a line x equals to 3. X equals to 3. Say this is a line x equals to 3. A farmer has a field of shape bounded by this and this, bounded by this curve and this line. तो फार्मर का फील्ड कौन सा है? ये वाला है, ये सारा उसका फील्ड है. Now what he says, he wants to divide this into his two sons equally. ये इंपॉर्टेंट है, इक्वली. By a straight line. A straight line x equals to c. अब x equals to c भी इसी तरह की लाइन होगी जैसी x equals to 3 है. वहां 3 है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब ये x equals to c भी एक लाइन y के पैरेलल होगी. और इससे ये भी पता है कि ये जो c है इसकी वैल्यू 3 के अंदर ही होगी, क्योंकि फील्ड को डिवाइड करना है, बाहर नहीं जा सकती. कॉमन सेंस है, लॉजिक है. तो मान लिया ये एक लाइन है x इक्वल्स टू c जो इस फील्ड को बराबर एरिया में डिवाइड कर रही है. मतलब ये एरिया, ये वाला एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल हैं. दिस इज व्हाट इज गिवन, राइट. लेट मी जस्ट लेबल इट फॉर कन्वीनियंस. ए बी सी, इसे हम लिख लेते हैं P Q और ये R. तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन. वी हैव गिवन एरिया ऑफ OACB. OACBO क्लोज्ड एरिया है ये. दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ APRQBCA, ये वाला क्लोज्ड एरिया. APRQBCA, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ना है. नाउ एरिया, पहले हम एरिया ऑफ OACBO कंसीडर करते हैं. ये जो एरिया है OACBO वेरी क्लियरली इस एरिया की डबल है, क्योंकि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है. तो यदि मुझे
ये वाली एरिया मिल जाए और उसे मैं डबल कर दूं, यहां से लेके यहां तक एरिया अंडर द कर्व, कर्व है ये वाला कर्व है मेरे पास, और ये 0 है, और ये पॉइंट मेरा C और इसकी y की वैल्यू है। यहां पर x C है, ये वैल्यू जो है C है। तो दिस विल बिकम, सपोज दिस पूरी एरिया ट्वाइस ऑफ 0 to C y dx। अब ये 2 है क्योंकि इस एरिया का हमें डबल लेना है, क्योंकि इतनी ही एरिया यहां भी है, ये वाला पोर्शन भी है, तो इसे मैंने डबल कर दिया है। अब व्हाट इट इज, दिस बिकम्स ट्वाइस 0 to C y। व्हाट इज y फ्रॉम द इक्वेशन? इट इज रूट ऑफ x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये आएगा मेरे पास 2/3x raised to the power of 3/2, और लिमिट्स 0 to C मीन्स 2 into 2/3 बाहर निकाला, और ये C 3/2 minus 0 which is 4 on 3 C 3/2। ये हमारी इस पोर्शन की एरिया होगी। अब हमें पता है कि दूसरी एरिया भी इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ही इज डिवाइडिंग द फील्ड अमॉन्ग हिज 2 सन्स इक्वली। यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं एरिया ए पी आर क्यू बी सी ए इज ट्वाइस ऑफ, अगेन यहां भी वही लॉजिक है, इतने के नीचे जो एरिया है ये पोर्शन, इसका हमने डबल किया, तो ट्वाइस ऑफ, यहां है ये पॉइंट है C, C से लेकर ये पॉइंट है 3, C to 3 y dx, कर्व वही है this। now this will be again 2 C 3 root x dx। this will become 2/3 x to the power of 3/2। अब इसमें लिमिट आपकी हो जाएगी 3 से C, सॉरी, and that will give you 4/3 3 to the power of 3/2 minus C to the power of 3/2। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, मीन्स 4 on 3 C to the power of 3/2 is equal to 4 on 3 3 to the power of 3/2 minus C to the power of 3/2। 4/3 4/3 कैंसिल कर दिया। नाउ यू हैव C रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2, और ये इधर आ गया तो ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 2/3, which will imply that C is equal to this by 3 raised to the power of 2 raised to the power of 3/2, sorry, not 3/2, it is 3/2, 3/2 upon 2। this can be written as cube root of 3
cube upon 4. We have just squared it. Or on further simplifying, you will get 3 by 2 root cube root of 2. This is our final answer. Thank you very much. We shall discuss few more questions in coming sessions. So be tuned.